dx of x cube minus 5 whole raised to 5, ठीक है, माइनस x cube minus 5 whole raised to 5 d by dx of x cube plus 3 whole raised to 3 divided by x cube plus 3 whole raised to 3. Okay, now this is equal to x cube plus 3 whole raised to 3. अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू n. तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करो. सिंस d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1, करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा? 5 x क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 माइनस 1 इंटू अगेन d बाई डी एक्स ऑफ, अभी x के जगह पे फंक्शन क्या है? x क्यूब माइनस 5. So d by dx of x cube minus 5. Same thing apply for second one. Minus x cube minus 5 raised to 5. ये क्या हो जाएगा? 3 into x cube plus 3 raised to 3 minus 1 2 into d by dx of x cube plus 3 whole divided by x cube plus 3 raised to 3. Clear? Which is equal to x cube plus 3 raised to 3 5 x cube minus 5 raised to 4. Now d by dx of x cube minus 5 डेरिवेटिव अंदर लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा? d by dx of x cube minus d by dx of 5. सिमिलरली यहाँ पे भी 3 into x cube minus 5 raised to 5 x cube plus 3 raised to 2 and d by dx of x square plus d by dx of 3 divided by x cube plus 3. ओके, मैंने डिनोमिनेटर स्क्वायर नहीं किया ना, एक होल स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू 3 एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 4. नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x square, correct, and derivative of 5 is 0. Minus 3 x cube minus 5 raised to 5 x cube plus 3 square. Derivative of x square is 2x and derivative of 3 is 0 divided by x cube plus 3. ओके, अब सिंप्लीफाई कर लोगे. एक्स क्यूब प्लस 3 होल रेज टू 2 कॉमन निकालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. Yes. Done? Yes, 12th one. I'm doing it. Twelfth one, y is equal to log 10 cube x into sin raised to 4x into x square plus 7 raised to 7. Okay. Now here
इन जनरल हम जो मेथड फॉलो करते हैं, अगर वो मेथड हम फॉलो करें तो क्या आएगा, dy by dx is equal to, this is a log function, derivative of log x is 1 by x, तो ये क्या आ जाएगा 1 upon this whole function into again d by dx of 10 cube x into sin raised to 4x into x square plus 7 raised to 7। करेक्ट। नाउ अब तुमको क्या करना, अप्लाई करना पड़ेगा u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। करेक्ट। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आई टेल यू इजियर मेथड। यू नो दैट log of m into n is equal to log m plus log n। करेक्ट। सो अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। पहले सिंप्लीफाई करो, y is equal to log of 10 cube x into sin raised to 4x into x square plus 7 raised to 7। फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, log of 10 cube x plus log of sin raised to 4x plus log of x square plus 7 raised to 7। ठीक है, रीजन इज दिस। नाउ you know that log m raised to n is equal to n log m। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू लॉग 10x प्लस 4 इंटू लॉग साइन x प्लस 7 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया है। नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सारे फंक्शन एडिशन से सेपरेट हो रहे हैं तो मैं डेरिवेटिव सेपरेट कर रही हूँ। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 log 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 log sin x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 log x स्क्वायर प्लस 7। अब कर लोगे। अब क्या करना है, 3 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ log 10x इज, this is equal to 3, derivative of log 10x is 1 upon 10x, x के जगह पे tan x है, चेन रूल अप्लाई करो, d by dx of tan x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 log sin x, 4 is constant, take outside, derivative of log sin x is 1 upon sin x, again apply chain rule, d by dx of sin x। correct। here 7 into derivative of log x square plus 7 is 1 upon x square plus 7, apply chain rule, d by dx of x square plus 7। ठीक है, which is equal to 3। हेलो मैम। हाँ, yes, any doubts? Derivative of tan x is sec square x divided by tan x plus 4, derivative of sin x is cos x, so cos x upon sin x plus 7 divided by x square plus 7, derivative of x square is 2x and derivative of 7 is 0, तो ये हो जाएगा 2x, which is nothing but 3x sec square x divided by tan x plus 4 cot x plus 14x divided by x square plus 7। Clear? हेलो मैम। Yeah. मैम एक मिनट,
I'm Your side. voice is which one? This page? Yes मैम this page. मैम यहाँ पे जो log 10 cube x ना मैम, मतलब log x the whole cube है ना मैम. हाँ. नो नो नो, होल क्यूब तो नहीं है, मैम 10 क्यूब x है. मैं आपने कल ही बताया था ना 10x the whole cube मतलब वो 10 cube x ही हो जाता है. 10 क्यूब x is equal to 10x होल क्यूब, करेक्ट. Yes. और इसके आगे हमारे पास log है, log 10x होल क्यूब. मैंने ये नहीं बोला है कि log 10x होल क्यूब, ये दोनों अलग अलग चीजें. क्लियर? Yes. ओके. सी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जब भी तुमको log के अंदर मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन मिले, सो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n. ओके. तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके फंक्शन सेपरेट किए हैं. देन उसके बाद क्या फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, log m रेज टू n इक्वल टू n log m. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 log tan x. देन यहाँ पे 4 इंटू log sin x, 7 इंटू log x स्क्वायर प्लस 7. एंड देन फिर डिफरेंशिएट करो. What happens, screen is not visible? Screen is visible. Okay. Ayush, I guess your net is working slowly. That's why. Bandwidth is slow. Ninth one, no? Done? Ninth one is y is equal to cot log x by 2 minus log cot x by 2. ओके, किसने पूछा था ये वाला? आर्यन. आर्यन, unmute yourself and help me. Yes, ma'am. Yeah. So we'll go step by step. सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये दोनों फंक्शन माइनस से सेपरेटेड हो रहे हैं. हाँ. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Differentiate with respect to x. हाँ, दोनों को सेपरेट करेंगे. Separate करेक्ट. करेंगे. हाँ. तो d बाई डी एक्स, इसको डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, cot ऑफ log x डिवाइडेड बाई 2 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log cot x डिवाइडेड बाई 2. करेक्ट. हाँ. अभी cot के अंदर फंक्शन है, करेक्ट. मींस हाँ. x के जगह पे log x बाय 2 है. तो सबसे पहले हम cot x को डिफरेंशिएट करेंगे, देन चेन रूल अप्लाई करके log x को डिफरेंशिएट करेंगे. करेक्ट. हाँ. 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 सो डेरिवेटिव ऑफ cot x बताओ. Minus cosec square x. ओके. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर log x बाय Log 2. x by 2. अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स log x बाय 2. हाँ. ओके. सेम थिंग अप्लाई हियर. अब log के अंदर cot है, करेक्ट. हाँ. मींस x के जगह पे cot x बाय 2 है. तो सबसे पहले हम log को डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन चेन रूल अप्लाई करके cot को डिफरेंशिएट करेंगे. करेक्ट. हाँ. हाँ. तो टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log x.
1 by 2 नहीं 1 by x ओके तो यहाँ पे अब x के जगह पे क्या है cot x by 2, तो 1 by हाँ cot x cot divided by x 2 and then again d by dx of cot x by 2, करेक्ट। मैम 2 को कॉमन नहीं ले सकते, कहाँ पे? 1 यहाँ by से 2 को कॉमन नहीं यहाँ पर सेकंड वाले टर्म में इधर ना, नहीं, log cot x by 2 में no you cannot, okay see here, cot theta by 2, can you take 1 by 2 outside? नो नहीं ना, बिकॉज ये नहीं एंगल है, करेक्ट। हाँ सिमिलरली ये भी एंगल है फंक्शन के फॉर्म में, हाँ ठीक है, यू कैन नॉट टेक इट आउटसाइड, यस which is equal to minus cosec square log x by 2। अब 1 by 2 कॉमन है, हाँ कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हो 1 by 2 हाँ एंड डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x। 1 by x ओके सेम ईयर, ये क्या हो जाएगा 2 by cot x, 1 by 2 कांस्टेंट, 2 constant डेरिवेटिव ऑफ cot x is cot माइनस x cosec square x। minus cosec square x हाँ अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लेना, कर लोगे? हाँ ओके थैंक यू यस हेलो मैम। यस मैम वो जो log x by 2 है और log x by 2, मैम इसमें कुछ डिफरेंस होगा क्या? मतलब इसमें मैम log x whole by 2 और log only x by 2। हाँ डिफरेंस है, सी log x होल बाय 2 log x बाय 2, यही पूछ रहे हो ना? हाँ मिस। ओके दिस इज 1 बाय 2 इंटू log x, ठीक है, ओ हाँ और ये क्या है, log के अंदर फंक्शन है x बाय 2। तो मैम हम लोग यहाँ से 1 by 2 नहीं निकाल सकते ना? नहीं हम यहाँ से 1 बाय 2 नहीं निकाल सकते। ओके मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ वन इज इजी यार, किसने पूछा है? स्मृति। हेलो मैम। हाँ ओके मैम लास्ट स्टेप में आंसर रॉन्ग आ रहा है। ओके चलो सॉल्व करते हैं। 7 y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x, यही है ना? नो दिस इज 6 नंबर। y इज इक्वल टू log ऑफ sec 3x प्लस tan 3x। ओके मेरे को बताते जाओ क्या क्या किया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, टेल मी फर्स्ट स्टेप। डी बाई डी एक्स हम्म लॉग सेक 3x ओके प्लस tan 3x, टेन। या अभी अभी प्लस है इसलिए सेपरेट करने का डेरिवेटिव को नो मतलब नो नो, सी ये पूरा एक सिंगल फंक्शन है, करेक्ट। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन log m plus n and log m plus log n। ये सिंगल फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन है। मैम हम लोग अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है? लॉग एम प्लस लॉग एन ऐसे नहीं ले सकते? नहीं, सी log m into n is log m plus log n, but log m plus n is not equal to log m plus log n, ओके ठीक है। तो ये पूरा अभी सिर्फ एक फंक्शन है हमारा, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करो log x के लिए सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to
डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, तो हो जाएगा 1/sec 3x प्लस tan 3x. नाउ अगेन डिफरेंशिएट. अब x के जगह पे फंक्शन क्या है, sec 3x प्लस tan 3x, करेक्ट. सो डेरिवेटिव ऑफ sec 3x प्लस tan 3x. अब सेपरेट कर सकते हो बिकॉज अभी दो फंक्शन है हमारे पास. दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ sec 3x प्लस d/dx of tan 3x, which is equal to derivative of sec x is sec x tan x, correct. तो हो जाएगा sec 3x tan 3x. अगेन x के जगह पे 3x है, सो डिफरेंशिएट 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x is sec square x, so sec square 3x d/dx of 3x. अब कर लोगे आगे का? Yes, ma'am. Thank you. Anything else? So question number 13. 13th and 14th. 13th, 14th, 15th. They are similar. So I'll do only one question. Question number 13th. Y is equal to log square root of 1 minus cos 3x divided by 1 plus cos 3x. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज इक्वल टू log 1 minus cos 3x divided by 1 plus cos 3x whole raised to half. ये समझा सबको? मैंने सिर्फ ये अप्लाई किया है. स्क्वायर रूट ऑफ x इज नथिंग बट x रेज टू हाफ. ठीक है, देन सिंस log m रेज टू n इज n log m, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ log 1 minus cos 3x divided by 1 plus cos 3x. Clear? Now since log m by n is equal to log m minus log n, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ log 1 minus cos 3x minus log 1 plus cos 3x. अभी ये सिंप्लीफाई हो गया. अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. dy by dx is equal to half is constant, take outside, d by dx of. अभी यहाँ पे दो फंक्शन माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव अंदर लेके जाओ. d by dx of log of 1 minus cos 3x minus d by dx of log 1 plus cos 3x. ठीक है, अब कर लोगे आगे का? एलिना, हेलो मिस. हाँ आगे का बताओ. दिस इज 1/2. यस, 1 upon 1 minus cos 3x करेक्ट. 1 minus cos 3x, then minus 1 No. upon नहीं नहीं, सी अच्छा d by dx of 1 minus हाँ. cos 3x. करेक्ट. चेन रूल अप्लाई करो. देन माइनस सेम थिंग फॉर सेकेंड टर्म. 1 minus 1 plus cos 3x d by dx 1 plus cos 3x. ओके, गुड.
Now this is equal to 1 by 2 1 upon 1 minus cos 3x. डेरिवेटिव अंदर लेके जाओगे तो सेपरेट करो डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ 1 is 0 and derivative of minus cos 3x is, take minus sign outside, d by dx of cos 3x minus 1 upon 1 plus cos 3x. Derivative of 1 is 0, d by dx of cos 3x. ठीक है. This is equal to half 1 upon 1 minus cos 3x. डेरिवेटिव ऑफ cos is माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 3x अगेन d by dx of 3x. Same thing apply here. Derivative of cos 3x is minus sin 3x, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, sin 3x divided by 1 plus cos 3x into d by dx of 3x. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो. डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे भी 3. डन. हेलो मैम. हम्म. मैम अगर वो 1/2 हमने बाहर नहीं लिया होता हाँ, तो मैम ये जो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस 3x है उसके ऊपर हाफ आता था ना. यहाँ पे आता फिर 1/2, यहाँ पे भी और 1/2. मैम यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस 3x के ऊपर नहीं आता. cos 3x के ऊपर मीन्स 1 माइनस नो, आई एम मैम नॉट वो जो गेटिंग. मैम वो जो पावर थी 1/2. दिस वन. हाँ हाँ मैम वही हाँ पावर. हाँ. तो मैम देन अगर हमने उसको बाहर नहीं लिया होता तो हम्म. मैम वो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस 3x के ऊपर पावर होती या नहीं होती. हाँ होती. अगर तुमको होती ना नहीं मैम. लेना है तो पावर होती है उसके ऊपर, बिकॉज अब ये हाफ अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड वापस से अगर मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, log 1 माइनस कॉस 3x रेज टू हाफ. करेक्ट. हाँ. अगर यस तुमको मैम. हाफ आगे लेके ऐसे नहीं करना है और डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या आएगा, यहाँ पे रेज टू हाफ होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 3x रेज टू हाफ एंड देन यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x का. यस मैम. तो वो थोड़ा मुझे डाउट लेंदी था. हो हाँ जाएगा. करेक्ट. मैम मैंने उसी से किया ना तो थोड़ा बीच में कंफ्यूज हो गया मैं. हाँ, क्योंकि ये ना ऐसा आएगा. वेट मैं सॉल्व करके बताती हूँ. log of 1 minus cos 3x plus, sorry, minus log square root of 1 plus cos 3x. ऐसे ही आया ना. हाँ मिस. हाँ, तो इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अगेन d बाई dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x. सिमिलरली यहाँ पे भी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 3x इंटू d बाई dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 3x. अभी
रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो हो जाएगा 1/√1 माइनस कॉस 3x इंटू 1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 3x again d by dx of 1 minus cos 3x. करेक्ट, सेम थिंग यस मिस। सेकेंड टर्म के लिए, बट ये वापस मल्टीप्लाई होके तुमको क्या मिलेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज एक्स, है ना, हाँ, तो 1 माइनस कॉस 3x मिलेगा। तो ये 1 माइनस कॉस 3x इंटू 2, अल्टीमेटली तुमको यही मिला ना। हाँ हाँ, ओके मिस, थैंक यू मिस। या सी, अगर तुमने पहले क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं किया और फिर आगे सॉल्व कर रहे हो, वो थोड़ा सा लेंदी होगा बट आंसर तुमको सेम ही मिलेगा अगर कैलकुलेशन तुमने प्रॉपरली किया है तो, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 किया अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है, y इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 5x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 5x बाई 2, सेम जैसा हमने ऊपर किया है। सो दिस इज होमवर्क। हेलो देन मिस। हाँ, मिस अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसा विच वन, मिस ऊपर वाला। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हो क्या? हाँ, टेल मी वंस अगेन, 1 रिपीट। माइनस कॉस 3x था ना, तो उसको हाँ 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, तो भी सेम ही आएगा ना। हाँ आंसर सेम ही आएगा। ओके मिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 कर लोगे, 15th भी सेम है, log square root of 1 minus sin x divided by 1 plus sin x, so ये भी homework। Then I'll solve 16th one, y is equal to log 4 raised to 2x x square plus 5 divided by square root of 2x cube minus 4 whole raised to 3 by 2। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, सपोज ये m है एंड दिस इज n, सिंस log m into n is log m plus log n, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू log of 4 raised to 2x, करेक्ट, प्लस log x square plus 5 divided by square root of 2x cube minus 5 raised to 3 by 2. Now, since log m raised to n is n log m, ये क्या हो जाएगा 2x into log 4 plus 3 by 2 into log x square plus 5 divided by square root of 2x cube minus 5, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन तुम्हारा सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको देखो, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ log m by n, मैम वो 2x³ माइनस 5 नहीं है, वो 4 है। या 4, सो ये किस फॉर्म में आ गया, log m by n विच इज इक्वल टू log m माइनस log n, करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2x log 4 प्लस 3 by 2 log
एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस log स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। करेक्ट। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 4 रेज टू हाफ। सो दिस इज इक्वल टू 2x log 4 प्लस 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5 माइनस हाफ एंड ये 3/2 log 2x क्यूब माइनस 4। ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। राइट। डन। ओके, सो क्या मिला? हेलो मिस। हम्म, मैम यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप में log 4 को डेरिवेटिव के बाहर क्यों ले लिया? वो कांस्टेंट थोड़ी ना है। log 4 कांस्टेंट है ना, वेरिएबल नहीं है उसमें। मैम लेकिन log 4 है ना, हम लोग उसको 1/log x के फॉर्म में ना मैम, वो तो log x के फॉर्म में नहीं है। सी, log x एंड log 2 दोनों में डिफरेंस है ना। ये फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, ये कांस्टेंट है। log टेबल यूज करके log 2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। हाँ। सो दिस इज कांस्टेंट टर्म। अच्छा तो मैम मतलब ऐसा अगर कोई कांस्टेंट टर्म आएगा 4 3 तो उसको हम लोग बाहर कर देंगे डेरिवेटिव से। हाँ, ओके अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसको बाहर लेते हैं ना। ओके अगर ये सिर्फ log 4 होता मेरे पास एंड इसको डिफरेंशिएट करना होता तो इसका वैल्यू 0 आता, डेरिवेटिव। मैम इसको हम लोग log a नहीं ले सकते? log a का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/a log ऐसे कुछ आता है। नो, log x to the base a is 1/x log a. हाँ log a is a fixed value, constant term, and derivative of constant term is 0 अगर वो सिंगली है तो। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसको बाहर लेते हैं, कॉमन निकालते हैं। ओके मैम। करेक्ट। ओके, सो 3/2 डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 5 अगेन d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/4 1/2x क्यूब माइनस 4
डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ -4 मिला सबको ऐसे, विच इज इक्वल टू 2 log 4 प्लस 3/2x² + 5। डेरिवेटिव ऑफ x² + 5 इज, डेरिवेटिव अंदर लेके जाओ, d by dx of x² is 2x, d by dx of 5 is 0। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ डेरिवेटिव ऑफ x² is 2x माइनस 3/4 2x³ -4। नाउ डेरिवेटिव ऑफ 2x³ क्या आएगा, d by dx of 2x³, 2 is constant, take outside, डेरिवेटिव ऑफ x³ is 3x², तो ये हो जाएगा 6x², करेक्ट, एंड डेरिवेटिव ऑफ 4 इज 0। मिला सबको ऐसे, इसके बाद के भी 2 क्वेश्चन सेम हैं, तो दोज टू आर होमवर्क। 19th one, y is equal to 25 raised to log to the base 5 sec x minus 16 raised to log to the base 4 tan x। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, since a raised to log a raised to log m to the base a is same as m, जिसके पावर में ले रहे हो वो वैल्यू एंड बेस सेम होना चाहिए, तो वैल्यू क्या मिलेगा तुमको, फंक्शन m, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, सिंस सी y इज इक्वल टू 25 को क्या लिख सकते हैं, 5², करेक्ट, log to the base 5 sec x minus 4² log to the base 4 tan x। इतना समझा मैंने क्या किया। नाउ सिंस log m raised to n is n log m, now here we have this side। अब हमारे पास RHS है, हमको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लाना है, मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 को इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 5 रेज टू log टू द बेस 5 sec² x माइनस 4 log टू द बेस 4 tan² x। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, 25 इज इक्वल टू 5², 16 इज इक्वल टू 4², तो 25 के जगह पे मैंने लिया 5², 5 raised to 2, so 25 is converted into 5 raised to 2 into log sec x to the base 5। Similarly 16 को मैंने लिखा 4 raised to 2 log to the base 4 tan x, करेक्ट, ठीक है। हेलो मैम, हाँ मैम इसका एक एग्जांपल दो ना मैम, समझ में आया, आपने वो 5 का स्क्वायर लिया और वो 2 log को दे दिया। ओके, सी सपोज आई हैव 25 raised to 3, करेक्ट, Yes, तो मैं ma'am. 25 को हाँ, लिख सकती हूँ 5² और ये होल रेज टू 3, करेक्ट, मतलब कि दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू 2 into 3, हाँ हाँ समझा।
Yes, तो miss. सिमिलरली अब यहाँ पे क्या था 25 रेज टू log to the base 5 sec x. This is equal to 5 square log to the base 5 sec x, which is nothing but 5 into 5 raised to 2 into 2 log. log to the base 5 sec x. Clear? Yes, ma'am. समझा. हाँ. Thank you, miss. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करो. देखो 5 रेज टू लॉग, दिस टू वैल्यूज आर सेम, इसका बेस और जिसके पावर में तुमने लॉग फंक्शन लिया है, तो वैल्यू क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सिमिलरली यहाँ का बेस और जिसके पावर में तुमने लॉग लिया है, दोनों वैल्यू सेम है, तो वैल्यू क्या मिलेगा tan स्क्वायर एक्स. करेक्ट. नाउ sec square x minus tan square x is 1. तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy by dx is equal to d by dx of 1 which is equal to 0. समझा मैंने क्या किया? हेलो मैम. हाँ, मैम ये लास्ट स्टेप एक बार फिर से बताओ ना, मतलब लास्ट के ऊपर वाला जैसे वो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 के बाद क्या हुआ? इसके बाद हाँ, इस ये स्टेप के बाद वाला स्टेप बताओ ना. दिस वन. ओके, सी a रेज टू log टू द बेस a m इक्वल टू m होता है. ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है. लॉग का बेस और जिसके पावर में तुम लॉग फंक्शन ले रहे हो, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा फंक्शन. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू log टू द बेस 5 x, दिस इज इक्वल टू x. ठीक है. 5 रेज टू log टू द बेस 5 x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू log टू द बेस 2 इंटू साइन x, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बेस और जिसके पावर में ले रहे हो दोनों सेम है, साइन x. करेक्ट. सो सिमिलरली अब यहाँ पे मेरे पास क्या था 5 रेज टू log टू द बेस 5 सेक स्क्वायर x, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी सेक स्क्वायर x. समझा? तो सेम मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है फॉर्मूला. 5 रेज टू log टू द बेस 5 sec square x is nothing but sec square x, and यहाँ पे भी 4 raised to log to the base 4 tan square x is tan square x. मैं वो sec और tan का स्क्वायर कैसे हुआ? ओके, स्क्वायर कैसे हुआ, गुड क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली थी 5 raised to 2 log to the base 5 sec x. ये कैसे आया, ये तो समझ आ गया था ना. हाँ. हाँ. नाउ सी मैंने क्या किया है, यू नो दैट log m raised to n is nothing but n log m. हम हर बार क्या करते हैं, हमको LHS दिया होता है, हम इस फॉर्म में लिखते हैं. करेक्ट. यस. नाउ अभी हमको ये फॉर्म दिया है, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्म में. सो हमारे पास है 2 log sec x टू द बेस 5, बेस भूल जाओ, दिस इज इक्वल टू, अब ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा ना. हाँ. दिस इज इक्वल टू log टू द बेस 5 sec x होल स्क्वायर. sec x होल स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना sec स्क्वायर x. ओके मैम. ओके. ओके, क्लियर? यस. नाउ एनी डाउट्स?
क्लियर हो गया लिख के? अमन किसका प्रूफ पूछ रहा है? नहीं मिस, कुछ नहीं, मिल गया। ओके yeah so question number 20th is homework. क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है क्या सबके पास अभी सामने? टेबल दिया है इन क्वेश्चन नंबर 4 अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ जी एफ डैश एंड जी डैश. ठीक है, I'll draw roughly x f of x g of x f dash of x. f dash of x मतलब क्या? d by dx of f of x. ठीक है, ये नोटेशन है बस. g dash of x 2 4 and 6 1 3 5 6 4 2 minus 3 5 minus 4. ओके सी ये तुमको टेबल दिया हुआ है. मीनिंग क्या है टेबल का? x2 मतलब कि when x is equal to 2 your f of 2 will be 1, this value. g of 2 will be 6, f dash of 2 is equal to minus 3 and g dash of 2 is equal to 4. ठीक है, समझा? वैल्यू तुमको कैसे देखना है? फॉर x इक्वल टू 2 f of 2 is 1, g of 2 is 6, f dash of 2 is minus 3, g dash of 2 is 4. ठीक है, क्लियर? ओके नाउ क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वन, इफ r of x is equal to f of g of x, find r dash of 2. अब यहाँ पे दिया है आर एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फाइंड आउट आर डैश ऑफ 2. सबसे पहले फाइंड करो आर डैश ऑफ एक्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ आर. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, आर डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स. वो सिर्फ नोटेशन है उसका. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिसाइड डी बाई डी एक्स ऑफ r of x is equal to d by dx of f of g of x. ओके इसका नोटेशन है r dash of x. दिस इज इक्वल टू, अब फर्स्ट फंक्शन क्या है? f. तो ये क्या हो जाएगा? f dash of g of x. करेक्ट. नाउ अप्लाई चेन रूल into d by dx of g of x, which is equal to f dash of g of x. Now I told you last time notation for this, g dash of x. Clear? Now substitute x equal to 2, which is asked in your question. Any doubts? Yeah, so r dash of 2 is equal to f dash of g of 2 into g dash of 2. Clear? Now tell me values for g of 2 and g dash of 2. टेबल देखो और वैल्यू बताओ. For x equal to 2, g of 2 is 6.
correct? And for x equal to 2, g dash of 2 is 4. Since g of 2 is equal to 6, g dash of 2 is equal to 4, value substitute करो, f dash of 6, g dash of 2 is 4, correct? Again look into your table and tell me value for f dash of 6. For x equal to 6, value for f dash of x is minus 4, correct? So minus 4 into 4 and your final answer is minus 16. Correct? Okay. See, करना क्या है सबसे पहले? Look into your table. सबसे पहले पूछा क्या है? If Rx is equal to f of g of x, find out R dash of 2. Correct? That means first of all you have to find out derivative of R of x and then substitute value for x. X equal to 2. ठीक है? हेलो मैम, हाँ. मैम ये r dash 2 का मतलब क्या होता है? R dash 2 is nothing but d by dx of R of 2. ठीक है? Which is nothing but d by dx of R of x at x equal to 2. Okay, means पहले क्या करना है? Rx को डेरिवेटिव करना है with respect to x and then x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना है. समझा? तो R क्या दिया है? R is equal to f of g of x. ये हमने चेन रूल के प्रूफ में भी किया है. हाँ, यस, हियर अब तुमको सी प्रॉब्लम्स में क्या होता है, तुमको फंक्शन दिया होता है कि फंक्शन क्या है. यहाँ पे तुम्हारे पास दिया नहीं है कि फंक्शन क्या है. यस, Rx f of g of x. R is फंक्शन, f is फंक्शन, g is फंक्शन. ये तुम्हारा कॉम्पोजिट फंक्शन है. तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या मिलेगा? d बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स. इसी को हम डिनोट करते हैं r डैश ऑफ x से. अगर तुमको r डैश ऑफ x नहीं लिखना है तो ये लिखो, चलेगा. दिस इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x. फर्स्ट फंक्शन क्या है? f. तो ये क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू, वापस हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x. करेक्ट? सो ये क्या मिलेगा? r डैश, मैं सबको अब नोटेशन फॉर्म में लिख रही हूँ, r डैश ऑफ x इज इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू g डैश ऑफ x. समझा? अब हमको क्या पूछा है? r डैश ऑफ 2 पूछा है. करेक्ट? दैट मीन्स एट x इक्वल टू 2. तो अब x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा r डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ g2 into g dash of 2. Now you have table in your hand. अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. You know that for x equal to 2, अब g of 2 की वैल्यू देखो. For x equal to 2, g of 2 क्या मिलेगा? 6. करेक्ट? एंड g dash of 2 क्या मिलेगा? 4. तो ये क्या हो जाएगा? f dash of 6 into 4. अभी ये f dash के अंदर 6 है, मीन्स फॉर x इक्वल टू 6, f dash of x क्या मिलेगा? -4. बराबर? तो दिस इज इक्वल टू -4 into 4 equal to 16. क्लियर?
समझा? एनी डाउट्स? डिफरेंशिएबल फंक्शन इज जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है। एग्जाम्पल इज ऑल दिस फंक्शंस जो हम सॉल्व कर रहे हैं। Okay, I can give you example of a function which is not differentiable. Y is equal to mod of x at x equal to 0. So this function is not differentiable at x is equal to 0 because at x equal to 0 you cannot draw well defined tangent. ठीक है, means तुम एक यूनिक tangent draw नहीं कर सकते. That means y is not differentiable at x equal to 0. And usually to check whether f is differentiable or not, हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, बट अभी यहाँ पे तुमको नहीं है, तो दैट्स व्हाई इसलिए मैंने नहीं बताया. एनी डाउट्स? मैम वो आपने बताया कि वहाँ पर हम लोग टेंजेंट नहीं डाल सकते हैं, यूनिक टेंजेंट. मैम उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, हम यूनिक टेंजेंट नहीं, डिफरेंट, मैंने लास्ट टाइम बताया था डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, करेक्ट. बट यहाँ पे हम यूनिक टेंजेंट ही नहीं ड्रॉ कर सकते. यहाँ पे इनफाइनाइटली टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है एट एक्स इक्वल टू 0. और मैम इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पर हाँ, बाकी सारे पॉइंट पे एफ इज डिफरेंशिएबल. ओके मैम, ठीक है. हाँ. क्लियर? ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस सब क्वेश्चंस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. अगर नहीं आया तो मैं कल बताऊंगी, ठीक है. बट सेम इसी वे से सॉल्व करना है. टेबल देख के पहले डिफरेंशिएट करना है, देन टेबल देख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, ट्राई करो. एंड क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस. क्लियर? या लेट्स स्टॉप हियर.